Welcome students. Today we are going to discuss about the log tables and their uses. First of all, we will learn some formula related with the log problems. If you have log a into b, then it will be equals to log a plus log b. For example, if you have log 5.25 plus sorry into 6.9, then it will be equals to log 5.25 plus log 6.9. Once again, if you have log 5.25 into 6.9, here 5.25 is a and 6.9 is b, means it is in the format a into b. Then the answer will be log a plus log b, means the value will be log 5.25 plus log 6.9. Now the another formula, if you have value log a upon b, then it will be equals to log a minus log b. For example, if you have log 9.5 upon 7.3, then it will be equals to log 9.5 minus log 7.3. Here a is 9.5 and b is 7.3. So log a upon b will be equals to log a minus log b, means log 9.5 minus log 7.3. The third formula, that is log a to the power b, it will be equals to b into log a. For example, if you have log 10 to the power 5, then it will be equals to 5 into log 10. Here a is 10 and b is 5. So log a to the power b is equals to b into log a. And therefore log 10 to the power 5 will be equals to 5 into log 10. So these three formula are used while solving the log problems. Now how to see the log values for a given number? Before starting the detail of log table, the use of the log table, I want to tell you that the value of log 10 will be equal to 1. Log 10 will be equal to 1. Log 10 to the power 2 means 100 will be equals to 2 into log 10 as per the third formula, and log 10 is 1, so it will be 2 into 1 means 2. Similarly, log 1000 means 10 to the power 3 will be equals to 3 into log 10, and log 10 is 1, so 3 into 1 means 3. Now if you have log 10 to the power any number like 7, so it will be 7 into log 10, so it is 7 into 1 equals to 7. It means whatever is the power on 10,
the log value for that number will be equal to that power. If the power is in negative sign, the value will be negative. For example, log 10 to the power minus 23 will be equals to minus 23 into log 10. So it is minus 23 into 1. So it is minus 23. Okay, so in this way the question related with the 10 to the power will be solved. Now how to get the log value for a given number? Before observing log value for a given number, we should convert a number into scientific notation. What do you mean by scientific notation? In scientific notation, the number should be in this format: n into 10 to the power n. Here this n is called as digital term, and this term is called as exponential term. In digital term, before decimal there should be only one non-zero digit. For example, 6.023 into 10 to the power 23. This number is in scientific notation. 6.023 is the digital term and 10 to the power 23 is the exponential term. In the digital term, before the decimal there is only 6, that is a non-zero digit. So before the decimal there should be only one non-zero digit. Whenever your number is in scientific notation, then only you can see the log table for it. Okay. Now if you want to get the log value for 5.2493 into 10 की power 6, the number is already in the scientific notation, but we have to separate the digital term and the exponential term. So we'll use the first formula for the log. So according to this formula, log a into b is equals to log a plus log b. So this number will be written as log 5.2493 plus log 10 to the power 6. Now the number for which you want to see the log value should have only 4 digits. First thing, it should be in scientific notation. Second thing, there should be only 4 digits. So if there is any extra digit, that should be removed, means it should be rounded off. So this is your first digit, this is second digit, this is third digit, this is fourth digit. So 3 is extra, it should be removed, and 3 is less than 5, so the previous number will remain as such, and after rounding off you can write this number as log 5.249 only plus log 10 to the power 6. Here we will use the third formula of log, that is log a to the power b. So it will be written as 6 log 10, 6 into log 10. Now we will
learn how to see the log value for 5.249 from the log table. This is our log table. We want to see the log value for 5.249. I've told you the number for which you want to get the log value should be in scientific notation, and there should be only 4 digits. Means the number should be in the format A, decimal, B, C and D. Here A is 5, B is 2, C is 4 and D is 9. So there should be only 4 digits. 1 digit should be before the decimal and remaining 3 digits should be after the decimal. Now in the log table, the first column of digits, I will use a term quotient column for it. It is not appropriate in the mathematical language, but it is my own language, that the first column given in the log table, I will say it as quotient column. Okay, and remaining columns are the answer column. In the quotient column, you will find your first 2 digits, means A and B digits. Okay, so this is your quotient column, and here you will find A and B digits. A is 5, B is 2. So we will see here 5 and 2. Okay, so in the log table we will go to 52. This is our 52 present in the quotient column of the log table. Okay, so first 2 digits, one is the digit before decimal, another is the digit after decimal. These 2 digits you will find in the quotient column. Okay, and you will select your 2 digits. Okay, now the third digit, that is the C digit, you will select from this 0 to 9. Okay, here there is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Out of these 10 digits you will find your C digit. In our number the C digit is 4, so you will select 4. Okay, now you have to see graphically, means under the 4 and in front of 52. Okay, तो 52 का 4 के नीचे देखेंगे तो देखिए आप, जो C डिजिट है दैट आई हैव सिलेक्टेड 4, मैं 4 के नीचे देखूंगा, क्लियर, ये 4 के नीचे, और 52 के सामने जो डिजिट है उसको मैंने इनसर्कल किया है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, दैट इज 7193. ओके, 52 के सामने 4 में देखेंगे, यानी 4 के नीचे और 52 के सामने, जैसे ग्राफ में देखते हैं इस तरह से आपको लॉग टेबल देखनी होगी. तो हमारी ए और बी डिजिट हैं 5 and 2 यानी 52, और सी डिजिट है 4. तो 52 के सामने और 4 के नीचे जो नंबर आंसर कॉलम्स में दे रखी है वो हम सेलेक्ट करेंगे, जिसको मैंने इनसर्कल किया गया है, जिसकी वैल्यू है 7193. तो मैं ये जो वैल्यू है 7193 मैं यहाँ इस डिजिट के सामने लिख रहा हूँ, 7193. ओके, अभी ये आंसर नहीं है. नाउ द फोर्थ डिजिट, दैट इज डी डिजिट, विच इज़ 9. तो आप देखिए आंसर कॉलम में आगे कुछ और नंबर भी दे रखे हैं जो कि 1 से शुरू हो रहे हैं और 9 पे ख़त्म हो रहे हैं. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Among these 9 digits you will select your D digit. As per our question, this is 9. Our D digit is 9. Clear? तो हम 9 के नीचे और 52 के सामने
जो नंबर है उसको सेलेक्ट करेंगे। 9 के नीचे और 52 के सामने, मैंने यहाँ लाइनें बना रखी हैं। 52 के जस्ट सामने अगर हम डी डिजिट के लिए चलें तो 9 के नीचे और 52 के सामने यहाँ जो नंबर है दैट इज़ 7। ओके, this is the number 7. Okay, note this number and write here. Now add these two numbers. फिर समझिए इसको, हमने 52 के सामने 4 के नीचे जो नंबर सेलेक्ट किया था वो था 7193। ठीक है, 52 किस में था? क्वेश्चन कॉलम में। कौन सी डिजिट है ये? ए और बी। ठीक है ना। और 4 के नीचे तो हमने सी डिजिट जो सिलेक्ट की थी, जो कि 0 से लेकर के इस 9 के बीच में थी, ये सी डिजिट है। ओके, इसमें हमने ये 4 डिजिट सिलेक्ट की थी और इस 4 के नीचे और 52 के सामने हमने जो नंबर सेलेक्ट की थी वो थी 7193। क्लियर? तो ए बी डिजिट्स के सामने सी डिजिट के नीचे हम लोग एक नंबर सेलेक्ट करेंगे, दैट इज़ रिकॉर्डेड हियर। सो 52 के सामने 4 के नीचे जो हमने नंबर सेलेक्ट किया वो है 7193। इसी तरह हम लोग इसके आगे सी डिजिट के आगे फिर से 1 to 9 नंबर दे रखी है। इनमें आपको आपकी डी डिजिट मिलती है और हमारी डी डिजिट है 9। तो हम 9 के नीचे और 52 के सामने की जो नंबर है, जो कि इसमें दी हुई है 7, उसको सेलेक्ट करेंगे और इस नंबर को जो पहले हमने नंबर रिकॉर्ड की थी उस नंबर के साथ ऐड करेंगे। तो हमें ये देखिए क्या मिलेगा, तो हमें मिलता है 7200। ओके, इस नंबर के स्टार्टिंग में अगर हम डेसिमल लगा दें तो ये हमारा आंसर होगा, यानी log 5.249 is equal to 0.7200। log 5.249 is equal to 0.7200। क्लियर? जो भी आंसर हमें मिलता है उसके स्टार्टिंग में हम डेसिमल लगाते हैं। यहाँ फिर ध्यान देने वाली बात है कि जिस नंबर की लॉग वैल्यू हम देख रहे हैं उसमें तो एक नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद डेसिमल है, लेकिन आंसर में स्टार्टिंग में डेसिमल है। नंबर जिसके लिए लॉग वैल्यू देख रहे हैं वो भी 4 डिजिट वाली है और जो आंसर है वो भी 4 डिजिट वाला है, लेकिन जिस नंबर की लॉग वैल्यू देख रहे हैं उसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल है और आंसर में स्टार्टिंग में डेसिमल है, जो कि आप चेक कर सकते हैं। लॉग टेबल में जो नंबर दी हुई हैं उनमें कहीं कोई डेसिमल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कॉलम में जो 2 डिजिट हैं ए और बी उनके बीच में डेसिमल है, जो कि शो नहीं किया गया है, और जो आंसर्स हैं उनके स्टार्टिंग में डेसिमल है जो कि शो नहीं किए गए हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम लॉग वैल्यू देखते हैं। तो हमने 5.249 की लॉग वैल्यू क्या देखी है? 0.7200। तो एक बार हम फिर से अपने क्वेश्चन पर आ जाएं। हम लॉग 5.2493 इंटू 10⁻6 के लिए लॉग वैल्यू देख रहे थे, तो हमने इसको कन्वर्ट किया था लॉग 5.2493 प्लस लॉग 10⁻6 में बाई यूजिंग फार्मूला log a इंटू बी इक्वल्स टू log a प्लस log b। इसमें डिजिटल टर्म में 5 डिजिट थे तो हमने एक डिजिट को राउंड ऑफ किया था, तो उसके बाद ये नंबर हो गई थी log 5.249। और जो एक्सपोनेंशियल टर्म है उसमें हम 6 आगे ले आते हैं क्योंकि log a की पावर b इंटू लॉग ए होता है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू log 10। अभी हमने log 5.249 की वैल्यू लॉग टेबल से देखी थी, जिसकी वैल्यू है 0.7200।
प्लस 6, log 10 की वैल्यू मैंने आपको बताया था 1 होती है, तो ये हो जाएगा 0.7200 प्लस 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 6.7200, यानी log 5.2493 इंटू 10⁻6 की वैल्यू हो गई 6.7200। तो इस तरह से हम log सॉल्व करते हैं। मैं एक एग्जांपल और लेना चाहूँगा। मान लीजिए हमारा नंबर है 435.78 और इस वैल्यू के लिए हम मतलब इस नंबर के लिए लॉग वैल्यू देखना चाहते हैं। तो पहले हमें इसको क्या करना होगा, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो जाएगी log 4.3578 into 10 to the power 2. Now in the digital term there should be only 4 digits, so we should have only 4357, 8 should be rounded off and 8 is bigger than 5, तो 7 जो रिमेनिंग है वो 1 से बढ़ जाएगी, यानी ये हो जाएगा log 4.358. When you remove 8, then previous number will be increased by 1 because 8 which is to be removed is greater than 5. So it will be changed to 4.358 and the exponential term is same. Now use the first formula, log a into b equals to log a plus log b. So this become log 4.358 plus log 10 to the power 2. log 4.358 के लिए हम log टेबल पहले की तरह देखेंगे। तो हमें देखना है log 4.358 के लिए वैल्यू, log 4.358 ये उसी फॉर्मेट में a डेसिमल b c और d, a और b तो आपको मिलेंगे क्वेश्चन कॉलम में, c आपको 0 से लेकर के 9 के बीच में सेलेक्ट करना है और d आपको 1 से लेकर के इस 9 के बीच में सेलेक्ट करना है। तो a b तो है 4 3, c डिजिट है 5 और d डिजिट है 8। तो हमें 4 3 के सामने और 5 के नीचे और 8 के नीचे क्या है वो चेक करना पड़ेगा। तो ए बी कॉलम में हम पहले 4 3 सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए हमने ए बी कॉलम में 4 3 को सेलेक्ट किया हुआ है, दिस इज 4 3 इन द क्वेश्चन कॉलम। ए और बी डिजिट हैं 4 3 और सी डिजिट है हमारी 5, तो 5 के नीचे और 4 3 के सामने हम नंबर देखें, ये नंबर है 4385। तो इसको आप नोट करें 4385। ऐसे ही डी डिजिट है हमारी 8, 8 के नीचे और 43 के सामने देखें, तो 43 के सामने और 8 के नीचे है 8, दिस इज 8, ठीक है ना। तो इस 8 को हम इसके नीचे लिख करके ऐड करें तो हमें मिलेगा 4393। जब हम 4385 और 8 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4393। फिर समझिए नंबर कहाँ से आई है, हमारी ए और बी डिजिट है 4 3, सी डिजिट है 5, तो हम 4 3 के सामने और 5 के नीचे देखेंगे, 4 3 के सामने और 5 3 के नीचे देखेंगे तो हमें मिलेगा 6385। तो हमने इस चीज़ को नोट किया है 63, सॉरी हमने पहले गलत नोट किया है, इट इज़ 6385, ठीक है। देन उसके बाद में हम डी डिजिट है 8, 8 के नीचे और 4 3 के सामने देखेंगे, तो 4 3 के सामने और 8 के नीचे है 8, ओके दिस इज़ 8। तो हम जो पहले आंसर था 6385 उसमें 8 को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6393। इन चारों डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे,
तो ये हमारा आंसर होगा, यानी log 4.358 विल बी इक्वल टू 0.6393। तो अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे 0.6393। 0.6393 is the log value for 4.358 which we have seen from the log table, plus log 10 की power 2, this is 2 log 10 from the formula log a to the power b, that is b into log a, तो ये हो जाएगा 2 into log 10, log 10 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 0.6393 प्लस 2 into 1, तो ये हो जाएगा 0.6393 प्लस 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2.6393। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम लॉग टेबल को यूज़ करते हैं। अगर हम 0.00438 के लिए लॉग वैल्यू देखना चाहते हैं तो इसको भी उसी तरह से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। इट विल बी लॉग 4.358 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि आपको डेसिमल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना होगा। डेसिमल शुड बी आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट, तो इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, 3 डिजिट के बाद शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी ये हो जाएगा log 4.358 इंटू 10⁻³ नाउ दिस वैल्यू विल बी log 4.358 प्लस log 10⁻³ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -3 इंटू log 10, और log 10 1 होता है तो ये हो जाएगा -3। वंस अगेन log 10⁻³ will be equals to -3 into log 10, and log 10 is 1, तो -3 into 1 is -3। और log 4.358 के लिए हमने log वैल्यू देखी थी और ये वैल्यू होती है 0.6393, तो इस वैल्यू को यहाँ लिखें 0.6393, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -2.3607। ओके, तो डेसिमल को हम लेफ्ट भी मूव कर सकते हैं, राइट भी मूव कर सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को लाने के लिए हम उसको किसी भी साइड मूव कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डिजिटल टर्म के साथ एक्सपोनेंशियल टर्म काम में लेते हैं। और जब दोनों टर्म एक्सपोनेंशियल टर्म और डिजिटल टर्म दोनों होते हैं तो हम log a इंटू बी इक्वल्स टू log a प्लस log b का यूज़ करते हैं। फिर हम log a और log b दोनों की वैल्यू अलग निकालते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमें अपना आंसर मिल जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर की लॉग वैल्यू देख सकते हैं। अब हम सीखेंगे एंटी लॉग वैल्यू कैसे देखते हैं। एंटी लॉग फॉर ए वैल्यू फॉर ए नंबर। एंटी लॉग अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर का देख रहे हैं तो उसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके लिए हम एंटी लॉग टेबल का यूज़ करते हैं, जो लॉग टेबल की जैसी ही है लेकिन डिफरेंट है। अगर नंबर पॉजिटिव है तो हम डायरेक्टली एंटी लॉग टेबल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर नंबर नेगेटिव है तो हमें प्रोसेस करना पड़ता है। पहले हम पॉजिटिव नंबर के लिए एंटी लॉग वैल्यू को लर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू सी एंटी लॉग वैल्यू फॉर 95.3649। ओके, पॉजिटिव वैल्यू के लिए
एंटी लॉग देखने के लिए डेसिमल से पहले जो भी डिजिट है वो सीधा 10 की पावर बन जाएगी। आप चेक कर सकते हैं आपके गिवन नंबर में डेसिमल से पहले 95 है, तो ये सीधा 10 की पावर 95 में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो नंबर डेसिमल के बाद जो 4 डिजिट हैं उनके लिए हम एंटी लॉग टेबल का यूज़ करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा उसमें 95 का मीनिंग है 10 की पावर 95। अब 0.3649 के लिए हम यूज़ करेंगे एंटी लॉग टेबल। तो देखें एंटी लॉग टेबल से हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे 0.3649 के लिए। ये है एंटी लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल में जो आपका नंबर है जिसके लिए आप एंटी लॉग टेबल यूज़ कर रहे हैं उसमें भी 4 ही डिजिट होते हैं, ए, बी, सी और डी। लॉग टेबल से यहाँ जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ क्वेश्चन में ए डिजिट से पहले डेसिमल होगा, यानी चारों डिजिट से पहले डेसिमल होगा। पहली 2 डिजिट ए बी जिनके पहले डेसिमल है ये आपको क्वेश्चन कॉलम में मिलेंगे। ये है आपका क्वेश्चन कॉलम, इसमें आपको ए और बी दोनों डिजिट मिलेंगी। तो देखिए आपकी ए और बी डिजिट क्या है 3 और 6 यानी 36। तो देखिए आप एंटी लॉग टेबल के अंदर आपको ये 36 मिलेगा। ये रहा आपका 36, ठीक है। देन सी डिजिट, सी डिजिट हम सेलेक्ट करते हैं इस 0 से लेकर के इस 9 तक के बीच की डिजिट्स में। आपकी जो सी डिजिट है वो है 4। तो देखिए आप 36 के सामने और 4 के नीचे, 36 के सामने 4 के नीचे यहाँ पर नंबर है 2312। तो इसको सबसे पहले आप नोट कीजिए 2312। फिर डी डिजिट है 9, 9 ये रहा, इसके नीचे और 36 के सामने देखिए ये 36 के सामने ये है नंबर 5। तो इसको भी नोट कीजिए 5। जैसे लॉग टेबल में करते हैं दोनों नंबर को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 527132। दोनों डिजिट्स को जब जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 2317। इस नंबर को आंसर में बदलने के लिए हम एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो हम 2 और 3 के बीच में डेसिमल लगाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.317, यानी एंटी लॉग ऑफ 0.3649 इज 2.317। फिर समझें ये कैसे आया है। हम पहली जो 2 डिजिट हैं जिनको हम ए बी डिजिट बोल रहे हैं वो है 36, सी डिजिट है 4। तो हम 36 के सामने
और 4 के नीचे देखेंगे और जो नंबर आएगी उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो 36 के सामने और 4 के नीचे है 2312। तो देखिए हमने इस 2312 को रिकॉर्ड किया है। फिर हमें डी डिजिट है 9, तो हम डी डिजिट सेलेक्ट करेंगे 9, 9 के नीचे और 36 के सामने देखेंगे तो ये है 5, दिस इज़ 5। तो हम इस 5 को भी यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। पहले जब हमने सी डिजिट के नीचे देखा था तब आया था 2312 और फिर डी डिजिट के नीचे देखा 36 सामने तो मिला 5। दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो मिलेगा 2317 और इस नंबर में एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा, दैट इज़ 2.317। तो आप याद कीजिए, लॉग के अंदर, क्वेश्चन के अंदर एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में डेसिमल है, लॉग में आंसर में स्टार्टिंग में डेसिमल होता है, एंटी लॉग में एक डिजिट के बाद डेसिमल होता है। तो ये एंटी लॉग ऑफ 0.3649 इज 2.317। अब हम इस वैल्यू को वहीं लिखेंगे जहाँ हमने इस क्वेश्चन को लिया था। तो देखिए हमारी वैल्यू होगी 2.317 इंटू 10⁻95। तो जो नंबर डेसिमल से पहले है वो सीधा 10 की पावर, और जो नंबर डेसिमल के बाद है उसके लिए हम एंटीलॉग टेबल काम में लेते हैं। तो हमने एंटीलॉग टेबल में 36 के सामने 4 के नीचे देखा तो हमें मिला था 2312। फिर 9 के नीचे और 36 के सामने हमें 5 मिला था, 2312 और 5 को जोड़ा तो हमें मिला 2317। एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया तो हमारा आंसर मिला 2.317। तो 0.3649 का एंटी लॉग वैल्यू है 2.317 और 95 जो कि डेसिमल से पहले है वो है 10 की पावर 95। तो हमारा आंसर हो गया 2.317 इंटू 10 की पावर 95। तो इस तरह से अगर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए एंटीलॉग देखते हैं तो सीधा हम एंटीलॉग टेबल काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर हमारी नंबर, यही नंबर नेगेटिव हो जाए तब क्या करेंगे? मान लीजिए हम एंटी लॉग ऑफ -95.3649, या मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, ज़रूरी नहीं कि हम यही नंबर लें। मान लीजिए मैं -42.6448 इसके लिए एंटीलॉग देखना चाहते हैं। तो चूँकि ये नंबर माइनस में है तो हम डायरेक्टली एंटीलॉग टेबल नहीं देख सकते। इसके लिए हमें थोड़ा प्रोसेस करना होगा। इसके लिए मैं इस नंबर को इसके पार्ट्स में इसको स्प्लिट करूँगा। सो एंटी लॉग ऑफ -42.6448 विल बी इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ -42 minus 0.6448. I may split it into -42 and -0.6448. दोनों को जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा -42.6448। तो हम ऐसा इस नंबर को स्प्लिट कर देंगे, डेसिमल से पहले के नंबर को अलग कर देंगे, डेसिमल के बाद के नंबर को अलग कर देंगे, दोनों का साइन नेगेटिव है। ध्यान दीजिएगा, हम ये जो सेकंड नंबर है जो डेसिमल के बाद है हम इसके लिए एंटीलॉग टेबल काम में लेते हैं और यहाँ ये नंबर नेगेटिव है, जबकि एंटीलॉग टेबल के अंदर जितने भी नंबर हैं वो पॉजिटिव नंबर है। तो हम इस नंबर को पॉजिटिव बनाएंगे और उसके लिए मैं इस नंबर में ऐड करूँगा +1 और इस +1 को कैंसिल करने के लिए मैं इस डेसिमल से पहले वाले नंबर पे मैं ऐड करूँगा -1। मैथमेटिकली हम ऐसा कर सकते हैं। हमने -42.6448 को स्प्लिट किया है -42 -0.648 में। अब -0.6448 को मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ +1, दोनों को ऐड करूँगा +1 और -0.6448, तो ये नंबर पॉजिटिव हो जाएगी। चूँकि मैंने +1 ऐड किया तो अब मैं
टू में -1 भी ऐड करूँगा ताकि ये इफ़ेक्ट नलीफाई हो जाए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +0.3552, यानी मैं जब -0.6448 में +1 ऐड करूँगा तो वैल्यू +0.3552 हो जाएगी। और ऐसे ही मैं -42 में -1 ऐड करूँगा तो ये वैल्यू हो जाएगी -43। तो इस तरह से मैंने डेसिमल के बाद का जो नंबर है उसको मैंने पॉजिटिव बना दिया है। अब मैं डेसिमल से पहले की नंबर और डेसिमल के बाद की नंबर दोनों को फिर से एक साथ लिखूँगा। तो ये नंबर हो जाएगी 43 बार डेसिमल 3552। मैं अब इस नंबर का एंटी लॉग देखूँगा। यानी हमारा क्वेश्चन था एंटी लॉग -42.6448, जिसको मैंने अब कन्वर्ट कर दिया एंटी लॉग 43 बार 0.3552। कैसे कन्वर्ट किया, मैंने सबसे पहले डेसिमल से पहले की डिजिट्स और डेसिमल के बाद के डिजिट को सेपरेट कर दिया। तो ये हो गया एंटी लॉग ऑफ -42 -0.6448। -42 में मैंने -1 ऐड किया, -0.6448 में मैंने +1 ऐड किया। -42 -1 को ऐड करें तो वो -43 हो गया। लेकिन -0.6448 में +1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.3552 इन पॉजिटिव साइन। तो इस तरह से डेसिमल के बाद की जो नंबर हैं उनको मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है। चूँकि एंटी लॉग टेबल में सारी नंबर पॉजिटिव होती हैं तो इसलिए मेरे को डेसिमल के बाद की सारी डिजिट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था। अब इन दोनों को फिर से मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 43 बार 0.3552। नाउ एंटी लॉग टेबल हम यूज़ करेंगे फॉर 0.3552 के लिए, और डेसिमल से पहले जो 43 बार है इसका मतलब हो जाएगा 10 की पावर -43। डेसिमल से पहले जो 43 बार है उसका मीनिंग हो जाएगा 10 की पावर -43। एंड 0.3552 के लिए हम उसी तरह से एंटी लॉग टेबल देखेंगे। तो चेक करें ज़रा, तो हमें एंटी लॉग टेबल यूज़ करनी है फॉर 0.3552। फॉर्मेट है डेसिमल ABCD। तो 0.3552 के लिए एंटी लॉग टेबल देखने हम क्या करेंगे, AB जो कि हमें क्वेश्चन कॉलम में मिलते हैं उसमें हम 35 सेलेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन कॉलम में AB डिजिट को अगर हम सिलेक्ट करें तो 35 चेक करें कहाँ है, ये रहा आपका 0.35। ठीक है, C डिजिट है 5, तो 5 के नीचे और 35 के सामने दिखेंगे। तो ये आ रहा है 2265। इस नंबर को आप नोट करें 2265। ठीक है, 35 के सामने और 5 के नीचे हमने सेलेक्ट किया है। फिर चेक कर लीजिए, दिस इज 2265। डी डिजिट है हमारी 2, तो ये रही हमारी डी डिजिट 2। 2 के नीचे और 35 के सामने देखें तो ये है 1। 2 के नीचे और 35 के सामने है 1, तो हम यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2266, और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.266। यानी एंटी लॉग ऑफ 0.3552 इज 2.266। तो हम 0.3552 के लिए एंटी लॉग की वैल्यू रखेंगे 2.266। ठीक है, 43 बार जो कि डेसिमल से पहले, उसके लिए एंटी लॉग हो जाएगा 10 की पावर -43। और 0.3552 के लिए एंटी लॉग टेबल हमने अभी देखी थी जिसमें कि हमने वैल्यू निकाली 2.266। तो इस तरह से एंटी लॉग ऑफ -42.6448 इज
2.266 into 10 to the power minus 43. दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम एंटी लॉग टेबल देखते हैं। यदि एक नेगेटिव नंबर के लिए एंटी लॉग देख रहे हैं तो ही हमें ये एक्स्ट्रा प्रोसेस करना होता है -1 +1 का। पॉजिटिव नंबर के लिए हम ऐसा कुछ नहीं करते। मान लीजिए हम एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए एंटी लॉग देखने जाते हैं जो वैल्यू है 0.059। हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में नहीं चेंज करना होगा। डेसिमल से पहले 0 है तो इसका जो आंसर होगा उसमें 10 की पावर 0 हो जाएगा, यानी वो वैल्यू हो जाएगी 1। और 0.059 के लिए हम एंटीलॉग टेबल यूज़ करेंगे, जिसमें 0.05 यानी ए और बी डिजिट हो गए 0.5, ए और बी डिजिट हो गए 0.5 और सी डिजिट है 9, डी इसमें नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 5 के सामने और 9 के नीचे, 0.5 के सामने और 9 के नीचे देखेंगे और चेक करते हैं कि हमें कौन सा नंबर मिलता है। तो देखिए 5 के सामने और 9 के नीचे जो हमें नंबर मिल रहा है वो है 1146। 1146। तो हम लिखें एक बार 1146, तो ये हो जाएगा 1.146, क्योंकि हमें एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होता है। तो इसलिए जो हमें आंसर मिला है 1146, उसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1.146। तो एंटीलॉग ऑफ 0.059 हो जाएगा 1.146 इंटू 10 की पावर 0, यानी 1.146 इंटू 1, सो इट इज़ 1.146। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो अगर एंटीलॉग एक डेसिमल नंबर के लिए निकाल रहे हैं तो घबराया नहीं, डेसिमल पहले सिर्फ 0 है तो 10 की पावर 0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। और डेसिमल के बाद जो भी नंबर है उसके लिए हम एंटीलॉग टेबल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लॉग और एंटीलॉग हम यूज़ करते हैं। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, अगर आपने किसी इक्वेशन में दोनों साइड में लॉग लिया है तो लॉग को हटाने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ता है। जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम है a की पावर 3 इज इक्वल्स टू 55.93 इंटू 10 की पावर -24, और मैं a की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इक्वेशन की दोनों साइड लॉग लूँगा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ लॉग a की पावर 3 इक्वल्स टू लॉग 55.93 इंटू 10 की पावर -24। लॉग a की पावर 3 हो जाएगा 3 लॉग a, और लॉग 55.93 इंटू 10 की पावर -24 हो जाएगा लॉग 55.93 प्लस लॉग 10 की पावर -24। लॉग 55.93 को मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं इसको लिखूँगा लॉग 5.593 इंटू 10 प्लस लॉग 10 की पावर -24। तो ये हो जाएगा लॉग 5.593 प्लस लॉग 10 प्लस लॉग 10 की पावर -24। लॉग 5.593 के लिए हम लॉग टेबल काम में लेंगे और लॉग 5.593 की वैल्यू लॉग टेबल से निकालेंगे। लॉग टेबल देखने पर इसकी वैल्यू मिलती है 7476। स्टार्टिंग में डेसिमल लग जाएगा
तो log 5.593 इज इक्वल टू 0.7476, log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, और log 10 के बाद -24, दिस बिकम -24 इंटू log 10 इज़ 1, तो इस तरह से हो जाएगा -24 इंटू 1 मीन्स -24। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -22.2524, ये वैल्यू आई है 3 log a की। तो log a हो जाएगा -22.2524/3। इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा -7.4175, ये आया log a। अब a निकालने के लिए यानी log को हटाने के लिए आपको इस नंबर का एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ -7.4175, तो हमें मिलेगा a। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर आपने किसी इक्वेशन में अपनी तरफ से लॉग लिया है इक्वेशन की दोनों साइड में, तो लॉग को हटाने के लिए आपको एंटी लॉग लेना पड़ता है। लॉग एंटी लॉग एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो लॉग के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेना पड़ता है। तो लॉग ए की वैल्यू आई है -7.4175, तो ए निकालने के लिए आपको इस नंबर का एंटी लॉग लेना पड़ेगा, और ये नंबर नेगेटिव है तो आपको वही प्रोसेस करना पड़ेगा, यानी एंटी लॉग ऑफ -7 -0.4175, इसमें -1 ऐड करेंगे, इसमें +1 ऐड करेंगे, फिर जो नंबर आएगा वो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा -8 और ये पॉजिटिव हो जाएगा 0.5821, -7 -1 को ऐड करते हैं -8, और 0.4175 में +1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5825। दोनों को अगर हम मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 8 बार 0.5825। 8 बार का एंटी लॉग हो जाएगा 10 की पावर -8। 0.5825 के लिए हम एंटी लॉग टेबल यूज़ करेंगे। 0.5825 के लिए एंटी लॉग टेबल में आपको मिलेगा 3823, और एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा तो ये हो जाएगा 3.823 इंटू 10⁻8। तो इस तरह से हमें ए की वैल्यू मिलेगी 3.823 इंटू 10⁻8। ये मैंने एक जो प्रॉब्लम ली है वो सॉलिड स्टेट से ली है। सॉलिड स्टेट में हम इस तरह का प्रोसेस करते हैं, अगर आपको ए क्यूब की वैल्यू पता चल जाए, ए क्यूब वहाँ एज लेंथ होता है, एज लेंथ का क्यूब अगर आपको मिल जाए तो उससे हम एज लेंथ कैसे निकाल सकते हैं लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल यूज़ करके। तो वो मैंने आपको सिखाया है कि हम इक्वेशन की दोनों साइड में पहले लॉग लेते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं, तो उससे हमें लॉग ए की वैल्यू मिलती है जो कि यहाँ पे आई है -7.4175। फिर हम इस नंबर का एंटी लॉग लेते हैं तो हमें ए की वैल्यू मिल जाती है। तो अगर हम क्यूबिक रूट में कोई डिफ़िकल्टी फील कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम इस तरह से पहले लॉग लें और फिर लास्ट में एंटी लॉग लें तो हम अपना आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉग एंड एंटी लॉग। थैंक यू।